وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے چیلنجز ہم نے بھی دیکھے. اگر آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ شناختی کارڈ بنوا رکھا ہے تو پھر کوئی آپ کو نادرا کے دفتر آنے کی ضرورت کسی ریگولر کام کے لیے نہیں ہے. موبائل اپلیکیشن جس کا نام پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن ہے، اس کے ذریعے یہ بڑے آرام سے سہولتیں ساری حاصل کر سکتے ہیں. جو سارے میجر سینٹرز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ بھی اسی اپلیکیشن کے ذریعے مل سکتی ہے. پاکستان میں شناختی کارڈ بنوانا ہو یا پھر رینیو کرانا ہو یا دیگر اہم شناختی دستاویز کا معاملہ تو لمبی لائنوں میں لگنا ایک بڑا چیلنجنگ اور محنت طلب کام ہوتا ہے، اور اوپر سے بار دفاتر کے چکر بھی لگانے پڑتے ہیں. مگر لمبی قطاروں میں لگنے اور دفاتر کے چکر لگانے کی پریشانی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ نادرا نے 23 سال کے بعد قوانین میں بڑی اور انقلابی ترامیم کرتے ہوئے شہریوں کو آن لائن سہولیات متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے. اب پاکستانی شہری گھر بیٹھے اپنی شناختی معلومات سے متعلق تمام سروسز نادرا کی موبائل ایپ یا پھر ویب پورٹل کے ذریعے حاصل کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جدید نظام نہ صرف وقت کی بچت کرے گا بلکہ بائیو میٹرک سیکیورٹی کو بھی بین الاقوامی معیار کے مطابق بنائے گا تاکہ شہریوں کا ڈیٹا محفوظ اور ہر عمل شفاف ہو. بچوں کی پیدائش کے رجسٹریشن کے لیے یونین کونسل میں اندراج کو لازمی قرار دے کر جعلی اندراجات کی روک تھام کو بھی ممکن بنایا جائے گا. یہ انقلابی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آن لائن سہولیات سے شہری فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نادرا کے ترجمان سید شباہت علی. بہت شکریہ شباہت آپ کی موجودگی کا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، نادرا کی جانب سے 23 سال بعد بڑی تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں، ترامیم کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو پروگرام میں مدعو کرنے کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان میں جو رجسٹریشن کا نظام تھا سن 2000 سے پہلے وہ نان کمپیوٹرائز تھا. ہمارے پاس ہاتھ سے لکھے ہوئے شناختی کارڈ ہوتے تھے. 25 سال پہلے جب نادرا کا قیام عمل میں آیا تو ہماری جو سب سے پہلی پرائورٹی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایک ایسا رجسٹریشن کا نظام متعارف کروائیں جو تمام طبقے کے لوگوں کو، چاہے امیر ہیں، غریب ہیں، کسی بھی لینگویج سے ان کا تعلق ہے، دور افتادہ علاقے میں رہتے ہیں یا شہروں میں، ان سب کے لیے ایک ایسا نظام ہو جو آسانی کے ساتھ ان کو رجسٹر کر سکے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے بہت سے چیلنجز ہم نے بھی دیکھے اور ہمیں یہ محسوس ہوا کہ سسٹم کے اندر کچھ لوپ ہولز ہیں جن کا بعض لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ فائدہ اٹھا کر کئی قسم کے نقصان شہریوں کو ہو رہے ہیں. ایک بہت بڑا نقصان تو یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا اور ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر ان سے بائیو میٹرک اٹیسٹیشن کروا کے لوگ ان کے خاندانوں کا حصہ بن جاتے ہیں. ایک اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ 18 سال سے جو کم عمر شہری پاکستان کے ہیں ان کا کوئی تصویری شناخت کا نظام ہمارے پاس نہیں تھا. جب میں کہہ رہا ہوں تصویری شناخت کا نظام نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سرٹیفکیٹ ہے جس کو آپ CRC یا بے فارم کہتے ہیں، چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یا بے فارم، اور اس میں آپ کے ٹوٹل بچوں کا نام اور ان کی جنس درج ہے. اب ان کی کو تصویر کے ساتھ آپ ویریفائی تو کر نہیں سکتے. بعض علاقوں میں لوگوں نے 12 14 بچے بھی رجسٹر کرا رکھے ہوتے تھے اور پھر اس سے کافی کمپلیکیشنز جنم لے رہے تھے. اس ساری تبدیلیوں کا اگر آپ پوچھیں کہ اوور آل بحیثیت مجموعی مقصد کیا تھا، تو اپنے رجسٹریشن کے نظام کو زیادہ مضبوط، زیادہ شفاف بنانا، شہریوں کو یہ حق دینا کہ وہ اپنی رجسٹریشن کو سمجھ بھی سکیں. جاننا چاہیں گے کہ نئی ڈیجیٹل پالیسی کے تحت کون سی نادرا کی سروسز ہیں جو کہ شہریوں کو گھر بیٹھے ان کے ڈور سٹیپ پر دستیاب ہوں گی، اور کون سی ایسی سروسز مخصوص ہیں جن کے لیے انہیں دفاتر جو ہے نادرا کے لازمی وزٹ کرنا پڑیں گے؟ اچھا، اگر آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ شناختی کارڈ بنوا رکھا ہے، یعنی 18 سال کی عمر کے بعد جو پہلی دستاویز آپ کو ایشو ہونی ہے وہ ہو چکی ہے، تو پھر کوئی آپ کو نادرا کے دفتر آنے کی ضرورت کسی ریگولر کام کے لیے نہیں ہے. آپ نے اپنے پتے میں تبدیلی کروانی ہے، آپ نے اپنا کارڈ دوبارہ اپلائی کرنا ہے، آپ نے اپنے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنا ہے، نائکاپ اپلائی کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ بڑے آرام سے اس موبائل اپلیکیشن جس کا نام پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن ہے، گوگل اور اینڈرائڈ دونوں پر یہ آلریڈی موجود ہے، لاکھوں اس کے ڈاؤن لوڈز ہو چکے ہیں، تو آپ اس کے ذریعے یہ بڑے آرام سے سہولتیں ساری حاصل کر سکتے ہیں اور قطار میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بالفرض آپ پھر بھی آپ کی تسلی نہیں ہے اور آپ سینٹر جانا ہی چاہتے ہیں تو آپ کو تقریباً جو سارے میجر سینٹرز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ بھی اسی اپلیکیشن کے ذریعے مل سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ وہاں جب پہنچیں گے اس ٹائم پہ تو آپ ہی کا انتظار ہو رہا ہوگا اور آپ کو کسی کیو میں لگنے کی ضرورت نہیں ہوگی.
अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड बनवाने के दौरान शनाख्त का जो एक प्रोसीजर होता है उसकी तस्दीक कैसे की जाएगी, अगर प्रिसाइजली बता सकें। जी बिल्कुल। आप जब अप्लाई करते हैं शनाख्ती कार्ड के लिए तो पहले सूरत हाल ये होती थी कि आपको किसी 17वें ग्रेड के ऑफिसर की अटेस्टेशन चाहिए होती थी। अब ये मामला हमने बड़ा आसान कर दिया। अभी मामला ये है कि आपका कोई भी ब्लड रिलेटिव आपको अटेस्ट कर सकता है, यानी अगर बेटा अप्लाई कर रहा है तो माँ या बाप में से कोई एक भी उसकी बायोमेट्रिक अटेस्टेशन कर सकते हैं, जिसके बाद उसका कार्ड बगैर किसी प्रॉब्लम के डिलीवर हो जाएगा। अच्छा शबाहत, अक्सर लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं आता, आपको पता है कि ख्वानदगी की शरह कितनी है, तो मोबाइल ऐप के जरिए शनाख्ती कार्ड की दरख्वास्त या फिर तजदीद का अमल किस हद तक सिंपल है और किस हद तक सेफ है? पहले मैं सेफ्टी की बात करूंगा जी। जो आपका डाटा है जाहिर है वो सबसे सेंसिटिव चीज़ है, क्योंकि अगर आपके डाटा तक का एक्सेस दूसरे लोगों तक हो जाए तो इससे बहुत से प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। सो ये जो एप्लीकेशन है ये आपका फिंगर प्रिंट लेती है, यानी आपके उंगलियों का अक्स लेती है, आपके चेहरे का अक्स लेती है और उसको मैच करती है। पहले जो हमारे पास रजिस्ट्री, चूँकि मैंने आपसे कहा कि पहली मरतबा अगर आपने शनाख्ती कार्ड बनवा रखा है तो आप इस एप्लीकेशन से फैज़याब हो सकेंगे, मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, तो वो आपके उस इमेज के साथ उसको एक दफ़ा टैली ज़रूर करेगा और उसके बाद आपको प्रोसीड करवा के देगा। सिमिलरली इस एप्लीकेशन के अंदर स्क्रीनशॉट लेने की हमने सहूलत नहीं दी, ताकि आप खुद भी अपनी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट अगर लेते हैं और वो पिक्चर्स में चला जाता है और उसका फिर कोई बैकअप किसी क्लाउड पर पड़ा होता है तो वहाँ से भी आपका डाटा लीक हो सकता है। जो दूसरी बात रही कि इसको आसान कितना बनाया गया है, तो आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। ये एक मरतबा जब आप अपनी फिंगरप्रिंट्स वगैरह दे देते हैं तो ये आपके फेस के उससे अनलॉक हो जाता है और आपको बिल्कुल आसानी के साथ सामने एक डैशबोर्ड है जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि मैंने शनाख्ती कार्ड बनवाना है, मैंने CRC बनवाना है या मैंने FRC के लिए अप्लाई करना है। इस एप्लीकेशन का हमने उर्दू वर्जन भी दे दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इसको आसानी से पहुंचा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्कुल हम इस्तेमाल करके देखेंगे कि आसान है या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बताइएगा इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए किसी किस्म का ख़ास स्मार्टफोन तो नहीं चाहिए पर्टिकुलरली, एक तो ये बता दीजिए, और साथ ही साथ शहरियों के डाटा को महफूज करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, नए इकदाम? पहले जो आपने बात की कि जो ये एप्लीकेशन है इसको अगर आपने यूज़ करना है तो ये कितनी आसान है, उस हिसाब से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है इस्तेमाल करते हुए और आपको लग रहा है कि आपको इसका प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा, तो नादरा का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है @नादरा ऑफिशियल, और आप उस पर चले जाएं। उस पर पाक ID की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उस प्लेलिस्ट में हमने कस्टमर सर्विसेज, हमारा एक डिपार्टमेंट है जो हमें बताता है कि लोग कौन से मरहले पे शिकायत ज्यादा कर रहे हैं। उन तमाम शिकायत जहां लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है हमने उसकी एक पूरी एक्सप्लेनेटरी सीरीज बना रखी है। सो आप वहां उसको प्ले करते रहें यूट्यूब पे और आपको स्टेप बाय स्टेप वो गाइड करेगा कि आपने कैसे जाना है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो एप्लीकेशन के अंदर ही ऑप्शन मौजूद है, आपको आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का चैट बॉट जवाब दे देगा। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, हमारी ईमेल या मोबाइल फ़ोन पर 1777 हमारी हेल्पलाइन है, उसके ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा पहलू है कि शहरियों के रजिस्ट्रेशन के जो डाटाबेस है उसको मजबूत करने के लिए या उसको महफूज करने के लिए क्या इकदाम किए गए, तो बहुत सारे इकदाम हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारे वो तमाम सर्वर्स, हमारे वो तमाम कंप्यूटर्स जिनके ऊपर शहरियों का डाटा मौजूद है, हमने उनको इंटरनेट से अलहदा कर रखा है और उसके बाद जो उनका आपस में जो ताल्लुक है उसके लिए काफ़ी सीरियस और स्ट्रिक्ट किस्म के प्रोटोकॉल्स मुतारिफ करवाए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल में हमने एक बाकायदा हमारा साइबर सिक्योरिटी का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम उसको कहते हैं, उसका एक डिपार्टमेंट हमने बनाया है जिसका काम ही है कि इदारे की साइबर सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए। और उसके अलावा हमने डिज़ास्टर रिकवरी का एक मुकम्मल प्लान बना रखा है, क्योंकि ज़ाहिर सारी सहूलियात जो आप दूसरी गवर्नेंस से रिलेटेड लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल ये सारी सहूलियात के बहुत से इनिशिएटिव्स फिंगर टिप पर हैं शहरियों की। लेकिन ज़रा ये भी बता दें कि ये जो बच्चों की पैदाइश का मामला है और फिर ये यूनियन काउंसिल में जो इंदराज कराना पड़ता है, ये डिजिटल क्यों नहीं हो सका और ये यूनियन काउंसिल में इंदराज कराने का आखिर मकसद क्या है? सबसे पहले जब एक शहरी के घर कोई बच्चे की पैदाइश होती है तो उसको पहले स्टेप पे यूनियन काउंसिल जाना होता है और वहाँ पर वो यूनियन काउंसिल, वो तहसील, वो ज़िला और इवेंचुअली वो सूबा अपनी
जो रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर अपने शहरियों को शुमार करता है कि जी हमारी जो तादाद है वो इतनी हो चुकी है, और ये यूनियन काउंसिल की सतह तक इस डाटा का होना बड़ा ज़रूरी है। सो जो 4 वाइटल इवेंट्स हैं, यानी कि पैदाइश है, शादी है, तलाक है और वफात है, इसके अंदराज शुरू से ही यूनियन काउंसिल में ही होता रहा है। और ये जो सिविल रजिस्ट्रेशन का निज़ाम है ये नादरा के बराह रास्त उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर नहीं आती, क्योंकि नादरा नेशनल रजिस्ट्रेशन करता है, यानी कि शनाख्ती कार्ड इशू करता है या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करता है। ताहम इस हवाले से हमने बड़ी मदद की है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की। सन 2019 के बाद से हमने इस निज़ाम को तकरीबन डिजिटलाइज कर दिया है। सो यूनियन काउंसिल में अब आप जिस भी बर्थ का इंदराज करेंगे, शादी का इंदराज करेंगे, नादरा के पास अपने सिस्टम में उसकी रिफ्लेक्शन ज़रूर आ जाएगी। इन्हें नादरा के इल्म में आ जाएगा कि ऐसा हो चुका है। वो अलग बात है कि आपको नादरा आकर फिर बायोमेट्रिक के साथ इसको रीवेरीफाई करना पड़ेगा। और आगे चल के यही जो एप्लीकेशन आप जिसके बारे में बात कर रहे थे, पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन, बहुत जल्द हम इसमें बर्थ रजिस्ट्रेशन, मैरिज, डेथ और डिवोर्स रजिस्ट्रेशन का निज़ाम भी लेके आ रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि शहरी इस एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करेंगे और मुतल्लिका यूनियन काउंसिल भी इसी एप्लीकेशन के थ्रू उसको अप्रूव करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा शबाहत, हमें ये भी बताइएगा, नादरा की जानिब से आने वाले वक्त में मजीद कौन सी मजीद डिजिटल सर्विसेज मुतारिफ करवाई गई हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे? जी बताइए। अच्छा, जो नादरा की ये मोबाइल एप्लीकेशन है, मैं पहले ये बता दूं कि नादरा की जितनी नई सहूलियात आई हैं और जितनी मजीद आने वाली सहूलियात हैं वो तमाम इसी एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म से आनी है। एक बहुत बड़ा इशू जो लोगों को होता है कि वो अपनी फैमिली की प्रॉपर उनको नहीं पता होता कि कॉम्पोजिशन पूरी आ रही है या नहीं आ रही। यानी आपसे भी अगर मैं सवाल कर लूँ कि क्या आपको 100% यकीन है कि आपके बहन भाइयों की तादाद बिल्कुल एग्जैक्ट है और वो एक दूसरे के साथ नादरा के सिस्टम में इंटीग्रेटेड हैं या नहीं हैं, तो आपको शायद इसका इल्म ना हो अगर आपने रिसेंटली अपना FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं निकलवा रखा। तो एक बहुत बड़ी सहूलियत जो इन तब्दीलियों में हमने की है वो ये है कि आप इस मोबाइल एप्लीकेशन पे बगैर FRC निकलवाए अपनी मुकम्मल फैमिली कॉम्पोजिशन देख सकते हैं। जबरदस्त। और देखने में अगर आपको लगे कि आपका कोई बहन भाई मिसिंग है, कोई बच्चा मिसिंग है या कोई फर्द ज्यादा ऐड हो गया है जो दर हकीकत आपके खानदान का हिस्सा नहीं है, तो आप यहीं पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद नादरा अपना जो भी काम है वो करेगा। इसके अलावा हमने जो बच्चों के सर्टिफिकेट हैं, जो जिसको हम बे फॉर्म या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, उसमें तस्वीर और बायोमेट्रिक्स का इजाफा कर दिया है। 3 साल की उम्र के बाद जो बच्चे लाए जाएंगे बेफॉर्म के लिए, उनकी तस्वीर ली जाएगी। 10 साल की उम्र के बाद जो बच्चे लाए जाएंगे उनकी तस्वीर के साथ साथ उनके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे। और इसी तरह इंशाल्लाह 14 अगस्त को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसी मोबाइल एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ी सर्विस का इजरा करने जा रहे हैं, जिसका नाम जो है डिजिटल ID है। इसकी तफसीलात में इंशाल्लाह शेयर करूंगा जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसका जरूर इंशाल्लाह। सैयद शबाहत अली, हम आपको उस मौके पर फिर दोबारा से जो है वो मदऊ करेंगे। बहुत शुक्रिया।